جو نظام ظاہری نظام ہے اس میں ایک بہت بڑا خلل واقع ہوگا. یعنی اسی طرح کے لوگوں کے تصرف کے زمانے میں دجال لعین کا خروج ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پاگل یا مجذوب کو پہچاننے کا آسان طریقہ، یعنی آیا کہ یہ شخص پاگل ہیں یا صاحب جذب ہیں، ان کو ہم کیسے پہچانیں؟ اس کے پہلے ہم نے پاگل و مجذوب میں فرق کیا ہوتا وہ عرض کیا. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی پہچان عام آدمی کر سکتا ہے یا نہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اس ضمن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاگل ہے یا مجذوب ہم کیسے پہچانیں. وہ پاگل ہیں یا مجذوب ہم کیسے پہچانیں، یا عام آدمی کیسے پہچان سکتا ہے، اور کیا عام آدمی پہچان سکتا ہے؟ تو جان لیں کہ ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے. ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے، یا ولی سے کچھ کرامات ظاہر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے عوام الناس ان کو پہچان لیتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ولی کو پہچاننے کے لیے ولی ہونا ضروری ہے. یا دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان سے کرامات ظاہر فرما دے، یا کچھ اسرار کی چیزیں ان سے ظاہر ہو جائیں، تو اس ذریعے سے عوام ان کو پہچان سکتی ہے. دو صورتیں اس کی ہوتی ہے، مگر حقیقی طور پر تو یہی ہے کہ ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے نا. اب عوام اس کے اندر کا کردار کتنا ہوتا، عوام کس طریقے سے ان کو پہچان سکتی ہے، اس میں کافی غلطیاں ہو سکتی ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے روڈ پہ چلتے پھرتے پاگلوں کو مجذوب سمجھنے لگتے ہیں، اور مجذوب کو بھی وہ پہچان نہیں پاتے ہیں. مگر صحیح معنوں میں، اگر حقیقی معنوں میں ولی کو پہچاننے کے لیے نگاہ بصیرت کی ضرورت ہے، بصارت سے زیادہ بصیرت کی ضرورت ہے. یعنی باطن کی جو نگاہ ہے اس کے ہی ذریعے ولی کو پہچانا جا سکتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین کو حاصل ہوتی ہے، یا مراقبات یا ریاضات کے جو منازل سے، ان مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان پر اس طرح کے حالات آشکار ہو جاتے ہیں. مگر عام لوگ اپنی عقل سے ہی اس کے فیصلے کرتے ہیں، چونکہ ان کی جہاں تک وہ جانتے وہی سمجھتے ہیں کہ ہر پاگل مجذوب ہے. ایسا نہیں ہے. جبکہ ولی کو پہچاننے کے لیے ولی ہونا ضروری ہے. سمجھ آیا؟ ولی کو ولی ہی پہچان سکتا ہے، یا دوسری صورت جو ہم نے عرض کیا وہ صورت ہو سکتی ہے. مگر عام طور پر عوام الناس کے لیے چند باتیں ہم آپ کے علم میں، آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں تاکہ آپ بھی پہچان سکے. اگر کبھی ایسا معاملہ پیش آئے تو آپ ان کو پہچان سکے. اب آپ کا جانا اگر کسی ایسے شخص کے پاس ہو، لہذا اگر کسی صاحب معرفت ولی کے پاس دو لوگ آ کر بیٹھ جائیں. ایک مثال لے لیجئے کہ دو لوگ آ کر کے یعنی جن کی عقل جو ہے معرفت الہی کے حصول کے بعد زائل ہوئی ہے، ان کے پاس اگر دو لوگ آ کے بیٹھ جائیں، ایسے شخص کے پاس جن کی عقل جو ہے، جن کا شعور جو ہے معرفت الہی کے حصول کے بعد زائل ہوئی ہے، ایک دوسرے وہ جن کی عقل کسی عام وجہ سے زائل ہوئی ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہوگا وہ آپ سمجھیے.
फिर आने वाले कोई गुफ्तगू शुरू कर दें, आने वाले कोई बातचीत शुरू कर दें, तो जो साहिब मारिफत वली यानी मजजूब होंगे, यानी हकीकी मजजूब होंगे, इस गुफ्तगू के ज़रिए इसे पहचान लेंगे। यानी आपकी बातों को जो मजजूब होंगे वो बखूबी वाकिफ़ होंगे, यानी आपको पहचानेंगे वो, और आप भी यानी उनका आपको पहचानना काफ़ी आसान है, चूँकि वो उनकी अकल ज़ायल नहीं हुई है, बस ये मुशाहिदे इलाही के अंदर मुस्तगरिक हैं, वो किसी और आलम के अंदर वो डूबे हुए हैं, उनकी तवज्जो कहीं और है। मगर जब आप इस तरह की कोई गुफ्तगू करोगे तो उनकी तवज्जो यहाँ भी हो सकती है, तो आपकी बातों को भी वो समझ जाएंगे। यानी ऐसे शख्स जिनकी अकल जो है मारिफत इलाही के हुसूल के बाद उन तजल्लियों के अंदर वो डूबे हुए हैं, उस मस्ती के आलम में है, मगर अब जब आप कुछ बातें करोगे उनकी तवज्जो यहाँ भी आ सकती है, ऐसी सूरत भी हो सकती है। क्योंकि ऐसे शख्स अब अगर वो कुछ गुफ्तगू भी करते हैं, दूसरी सूरत ये है, एक तो ये कि आपकी बातों की तरफ वो मुतवज्जे भी हो जाएंगे, ऐसी भी सूरत होती है। दूसरी सूरत यह है कि आप उनको कैसे पहचानेंगे, यानी जब वो आपकी बातों की तरफ मुतासिर होंगे, या आप जो है एक मिसाल लीजिए कि साहिब रियाजत हैं या औराद वज़ाइफ के पाबंद हैं, तो चलते फिरते अगर आप उनके सामने हैं तो आपकी उनकी तवज्जो आपकी तरफ भी आ सकती है, मुतवज्जे आपकी तरफ होंगे। ऐसे मुशाहिदात मेरी ज़िंदगी में हुए हैं कि आप खामोशी से जा रहे हो, बाकी आपके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, रूहानियत आपके अंदर है और वो भी रूहानी अशखास में से हैं, तो आपकी तरफ तवज्जो उनकी हो जाएगी, मुतवज्जे आपकी तरफ हो जाएंगे। अब ये जो साहिब जज्ब होंगे, जो अल्लाह के महबूबों के दर्जे पर होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत के बाद इनकी अकल ज़ायल होती है, इनके कलाम, इनकी बातें अगरचे हमारी आम लोगों के समझ से बालातर है, या उनकी बातें सुन करके हम कहेंगे तो पागल है, ऐसी बातें कर रहा है, मगर यूं समझिए कि इनकी बातें हमारे समझ में आए या ना आए, चूंकि वो जिस दर्जे पर हैं वो उसी दर्जे की बातें करेंगे, है ना। वो जिस मकाम पर हैं, चूंकि जिस मुशाहिदे के आलम में हैं, जिस्म तो इनका यहाँ है, बाकी शऊर उनका वहां पर है, तो वो जिस आलम में है उनकी बातें भी उसी दर्जे की होंगी, उनकी बातों से असरार रुमूज़ व असरार जाहिर होंगे। अब इनको क्या नाम है, अगरचे हमारे समझ में आए या ना आए, मगर बातनी तौर पर इनके कुछ असरार ज़रूर जाहिर हो जाते हैं, यानी जो बातें उनकी होंगी वो पुरअसरार बातें होंगी, मारिफत इलाही की बातें होंगी, ऐसी बातें होंगी जो आम आदमी तो नहीं, मगर जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने निगाह बसीरत अता फरमाई हुई है वो ज़रूर पहचान जाएंगे, क्योंकि जिस दर्जे की बातें वो कर रहे होंगे, है ना, जिस आलम में वो मौजूद हैं, ख्याल उनका शऊर जिस मुशाहिदे के आलम में है, तो उनकी गुफ्तगू उसी के मौजू से रिलेटिव उस तरह की बातें होंगी जो कि आम आदमी वो चीज़ें नहीं समझ सकता है, मगर जो अहलुल्लाह होंगे वो ज़रूर उनको पहचानने में उनके लिए आसानी होगी। यानी मजजूब हजरात की बातें आम लोगों के इल्म में तो नहीं आती, मगर इनकी बातें सुनकर इनकी बातों के असरार जाहिर होते हैं। यानी इनके मुंह से अगर कोई चीज़ निकल गई, इनकी ज़ुबान पाक से अगर कोई बात निकल गई तो वह पत्थर के लकीरें होके ही रहेगी, बरक्स उस पागल के, चूंकि पागल दिन भर कुछ ना कुछ कहता रहेगा मगर कुछ होगा नहीं। मगर अगर कोई मजजूब वली है, अगर कोई मजजूब वली हैं, उनके ज़ुबान पाक से जो भी बातें निकलेंगी यकीनन वो बातें होंगी और जल्दी ही जाहिर हो जाएंगी। समझ में आया। और जो साहिब जज्ब होते हैं उनकी बातों में बड़ी गहराई होती है, बहुत वजन होता है, अगरचे आम लोगों के समझ में नहीं आएगा। जैसे अब हम कुछ बातें कर रहे हैं आपसे लताइफ के बारे में, असरार इलाही के बारे में, मारिफत इलाही के बारे में जो बातें होंगी तो कौन समझेगा, जो इसका अहल होगा। इसीलिए कि जो वो जिस लेवल के वो जिन मकामात पर वो फाइज हैं उसी दर्जात की बातें ये करेंगे। तो अब जब आप अगर क्या नाम है राह सुलूक की मंजिलें तय कर रहे हो तो आप बखूबी उनकी बातों को समझ जाएंगे, और उनकी बातों के अंदर बड़ी गहराई, बहुत वजनपन और बहुत ही चीज़ें ऐसी होंगी जो पुरअसरार बातें होंगी, और उनकी कही भी बातें, उनकी ज़ुबान पाक से निकली हुई कोई भी बात पत्थर की लकीर की तरह समझ लीजिए कि वो होके ही रहना है। इसीलिए
इनके बातों के ज़ाहिरी माने कम, बातनी और हकीकी माने बहुत ज़्यादा ज़ाहिर होते हैं। जो मजजूबीन हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला की जमाल के मुशाहिदे के बाद जो हालत जज्ब में चले गए हैं, उसके जमाल के तजल्लियात में गुम हो गए हैं, उसकी मस्ती में मस्त हैं, इस आलम से बेपरवाह होकर के किसी और आलम में सैर कर रहे हैं, तो ये इनकी बातें जो है बातिन से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखती हुई होंगी। मारिफत इलाही की तरफ उनका इशारा इनकी बातें अक्सर करती हुई होंगी। ये साहिब करामत भी होते हैं। यकीनन इनसे करामतों का ज़हूर बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। जो कह दिए वो हो गया, आने वालों की चीज़ें उनके हालात से आश्कार हो जाना, क्योंकि बहुत सारी बातें इनसे ऐसी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। लिहाजा इनके पास जाने के लिए भी बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। समझ में आया? चूँकि अगर ये हालत जज्ब में है, किस आलम में है, किस कैफियत में है, इनके ज़ुबान पाक से जो बातें निकलेगी होके रहेंगी। इसलिए इनके पास जाने के लिए, अगर जानने की कोई साहिब मजजूब हैं, हालत जज्ब में उन पर तारी होता है या अक्सर जज्ब में ही रहते हैं। बहुत सारे ऐसे अल्लाह वाले हैं कि जज्ब और सुलूक दोनों उन पर होते रहता है। कभी कभी 2-4 घंटे के लिए जज्ब आया, फिर सुलूक में आ गए, शऊर में आ गए, फिर जज्ब में आ गए, फिर सुलूक में आ गए। समझ में आया? बहुत सारे अल्लाह वाले ऐसे गुजरे हैं कि कुछ लम्हे उन पर, कुछ पल, कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ महीने, कुछ हफ्ते उन पर जज्ब रहा, फिर शऊर में आ गए, सुलूक में आ गए। तो अब ये गौर करना कि सालिक व मजजूब अगर दोनों हैं तो उनसे तालीम और तरबियत भी ली जा सकती है, मगर जब हालत जज्ब में होंगे तो उनकी तालीम नहीं ली जाएगी, क्योंकि वो जिस मुशाहिदे की बातें करेंगे आप तक वहाँ की रिसाई नहीं होगी, आप समझ नहीं पाओगे। समझ में आया? तो इनके पास जाने के लिए सबसे पहले आसान तरीका यह है कि अगर वाकई कोई मजजूब वली हैं तो उनके मिजाज को आप परखें कि उनकी पसंद क्या है, उनकी नापसंद क्या है ना? जब भी किसी मजजूब के पास जाएं तो खाने पीने की चीज़ें या उनके मिजाज को उनके करीब रहने वालों से परख लें कि भाई हजरत किन चीज़ों से खुश होते हैं, किन चीज़ों से नाराज़ होते हैं। ये सारे आदाब के साथ उनकी बारगाह में जाएं, इंशाअल्लाह ताला फैज़ी होगा। अब रही बात ये मजजूब, अच्छा, इनकी रूह हर वक्त मुशाहिदे इलाही में होती है, इसीलिए इनके चेहरे पर खुशी और मस्ती के आसार जाहिर होते हैं। समझ आया? क्योंकि रूह इनकी हर वक्त जो है मुशाहिदे इलाही में होती है, इसीलिए इनके चेहरे पर भी खुशी और एक तरह की मस्ती का जो आलम होता है उसी में ये डूबे रहते हैं। इसके बरक्स पागल की पहचान क्या है? जिसकी अकल मारिफत इलाही में नहीं बल्कि किसी और सबब से, किसी और वजह से जिसकी अकल ज़ाइल हो गई होती है, इसमें उसकी बातों से किसी भी तरह के असरार और रमूज जाहिर नहीं होते, है ना? आमतौर पर जो किसी और वजह से जिसकी अकल ज़ाइल हो गई होगी उसके बातों से कोई असरार, कोई राज, कोई कश्फ, कोई करामात वगैरह उसे जाहिर नहीं होंगी, क्योंकि इनकी रूह जो है मुशाहिदे इलाही से महरूम होती है। समझ आया? अब वो महरूम होने की वजह से हमेशा ये मगमूम, गमज़दा नजर आते हैं, जबकि मजजूबीन उमूमी तौर पर गमज़दा कभी नजर नहीं आएंगे। वो अक्सर मस्ती के आलम में या खुशी के उनको ऊपर अक्सर ये तारी रहेगी। और ये जो क्या नाम है पागल होंगे, इन पर वहशत और गम इनके आसार से भी जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। जैसे गमगीन आदमी रहता, मगमूम रहता है, तो पागल और मजजूम में एक बहुत बुनियादी फर्क ये है कि जो मजजूब होंगे वो अक्सर जो है उसी खुशी के और इस्तगराक के आलम में डूबे रहेंगे, और उनके ज़ुबान पाक से जो बातें निकलेंगी उसमें बड़ी गहराइयाँ और बातनी असरार उसमें छुपे होते हैं। और पागल जो है ये गमगीन और क्या नाम है परेशान ज़दा, इस तरीके के हालात में वो नज़र आएंगे। और जो मजजूब वली हैं इनकी रूह हमेशा मुशाहिदे इलाही में होने की वजह से हरदम ये खुश रहती है, जिसका असर इनके चेहरे से भी जाहिर होता है। ये हजरात काबिल एहतराम औलिया में से हैं, मगर इन्हें एक चीज़ है कि इनको अल्लाह तबारक व तआला तसर्रुफ से रोक देता है। ये तसर्रुफ जैसे आम औलिया कराम जो हैं जिनके दर्जात हैं, मगर ये जो मजजूब हजरात को तसर्रुफ का इख्तियार नहीं होता है। हाँ, मगर कभी जब हालत सुलूक में आते हैं तो तसर्रुफ फिर इनको शुरू हो जाता है। मगर इनके मजजूबीन, अब ये सवाल ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम है, उसकी इनायत है, उसकी मर्जी है, उसकी कुदरत है, वो जिसको जिस हाल में रखना चाहे रखे। मगर हाँ, एक ख़ास बात मजजूबीन हजरात के लिए है कि अल्लाह तबारक व तआला जब कुर्ब क़यामत में जब दज्जाल का खुरूज का ज़माना करीब आएगा, यानी दज्जाल के नुज़ूल व खुरूज दो चीज़ें हैं। जब दज्जाल के क्या नाम है मरने का वक्त करीब आएगा, उसकी फितना जब एकदम आम हो चुका होगा,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجذوبین اپنے محبوبین کو تصرف کا حق عطا فرما دے گا، ان کو اختیار دے دیا جائے گا تصرف کا۔ کس دور میں؟ جب دجال کو ہلاک کرنے کے وقت قریب آ جائے گا، یعنی قرب قیامت کے آثار میں سے ہوگا کہ دجال کے ظاہر ہونے کے بعد جو ہے، نزول دجال کے بعد خروج دجال جب ہوگا، جب دجال کیا نام ہے اس کے مرنے کے وقت قریب آئے گا، تو وہ آئے گا کیوں، وہ ہلاک کیسے ہوگا کہ ان مجذوبین بندوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معرفت کے بعد ان کی عقل جو کا نام ہے، ان کا شعور جو ہے وہاں پہ لگ کر کے اپنے جسم سے غافل ہو گیا، تو ان کو تصرف کا اختیار دے دیا جائے گا، جس کے نتیجے میں دنیاوی ظاہری نظام کے اندر ایک عظیم خلل واقع ہو جائے گا۔ جو نظام ظاہری نظام ہے اس میں ایک بہت بڑا خلل واقع ہوگا۔ یعنی اسی طرح کے لوگوں کے تصرف کے زمانے میں دجال لعین کا خروج ہوگا، سمجھ آیا؟ دجال کا خروج جو ہوگا انہی مجذوبین کے تصرف کے دور میں ہوگا۔ دجال کی ہلاکت کے بعد پھر ان حضرات سے تصرف اللہ تبارک و تعالیٰ واپس لے لے گا۔ یعنی فتنہ دجال کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی مقربین نے بارگاہ کے طفیل، انہی کے ذریعے، انہی کے تصرف، انہی کے جلال، انہی کے جمال کے برکت سے دجال کے فتنے دجال کو تباہ فرمائے گا، اور دجال بھی انہی کی برکتوں سے ہلاک و تباہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم اپنے ان مست بندوں کے طفیل ہم سب کے شعور کو مشاہدے کے بعد باشعور فرمائے، شعور میں رکھے، ہوش میں رکھے، اور مشاہدے الہی کے مزے سے ہر وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ فیضیاب فرماتا رہے، اور اس کے تمام محبوبین کے فیض و برکات ہم پر، ہمارے بچوں پر، تمام مریدین پر، سب پر ان کی برکتیں نازل ہوں۔ اور خصوصی طور پر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ان کی برکتوں سے ہمارے تمام بچوں کو جو راہ سلوک کے منزلیں طے کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عقل کی سلامتی کے ساتھ نفس کے شر سے اور تمام طرح کے شرری مخلوق کے شروں سے محفوظ فرمائے۔ آمین تم آمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔